Hello, welcome back once again in Principles of Electronic Communication subject. So in the last lecture, we have understood the mathematical representation of AM wave. So revising the topic once again, the mathematical equation of Assalamualaikum, sir. Asram. We have seen in the last lecture the mathematical equation of AM wave, amplitude modulated wave. So I am continuing the last lecture topic, revising once again what is the mathematical expression we have derived for amplitude modulated wave. So we have seen in the last lecture for amplitude modulated wave, we require two signals, that is modulating signal and carrier signal. Actually, the AM signal is only the carrier signal. The thing is that in carrier signal, the amplitude is varies with respect to the amplitude of modulating signal. So you know very well any sine wave type signal, the expression of any sine wave type signal is V sine omega t. For example, if I am showing you one any this, for example, this is a sine wave signal. This is modulating signal, sine wave type signal. This is carrier signal. It is also a sine wave type signal. The only difference is that modulating signal is of low frequency and carrier signal is of high frequency. And for generating the AM wave, this carrier signal is only the AM wave. Only the thing is that the amplitude of this carrier signal is varies with respect to the amplitude of modulating signal. So this is the type of AM waveform which we are seeing. Kenapa sih, bro? AM waveform. Please mute karo please. Everybody please mute. This is the carrier signal. So carrier signal amplitude is, hello, please mute. Don't disturb. Please mute. So for AM signal, this is nothing but the carrier signal only. Only the amplitude of carrier signal is varies with respect to the amplitude of modulating signal. So for the expression of AM wave, we require the expression of this carrier signal. This carrier signal is nothing but sine wave signal. So sine wave signal expression is given by V sine omega t. V sine omega t. So in the expression V sine omega t, this V stand for amplitude and omega stand for frequency. Omega is equals to 2 by f. So for the expression of this AM wave, we require the expression of sine wave. So this is the expression of AM wave. So for expression of AM wave, we have denoted the amplitude of AM wave with certain equation denoted in this bracket, and it is a sine wave signal. So that's why given sine omega ct. This omega c stand for carrier frequency. Omega is equals to 2 pi f. You know very well omega is equals to 2 pi f. So this omega c, why it is written c? Because it stand for carrier signal. So AM is nothing but carrier signal. Only the thing is that its amplitude is changing with respect to the amplitude of modulating signal. So this is the expression of the amplitude of AM wave. In this expression, the amplitude of AM wave, here it is shown, it is carrier amplitude EC. EC stand for carrier voltage, peak voltage. EC, peak voltage of carrier signal, is varies with respect to the modulating signal. So modulating signal is also a sine wave type signal, and that expression is also given by E sine omega mt. EM stand for amplitude of modulating signal, sine stand for sine wave type signal, and omega m stand for modulating frequency, where omega is equals to 2 pi f. So here the expression of EM wave, it is shown the amplitude of AM wave. The amplitude of AM wave is nothing but carrier peak amplitude varies with respect to the modulating signal, and carrier and AM is nothing but the carrier wave signal only. So that's why in the expression it is given sine omega ct. So while we are going to open this bracket, here we are taking just EC common. In this bracket we are taking EC common. So EC common here will get 1, plus here it is not having any EC term. So multiplying and dividing this term by EC. So numerator EC will get common, and in denominator you will get EC. So this expression will become EM by EC. Rest all the things are same. Sine omega mt bracket close, and in the further sine omega ct. Now the term this EM by EC is known by modulation index, which is denoted by small m.
So small m is equals to Em by Ec. So modulation index in Am is the ratio of amplitude of modulating signal to the amplitude of carrier signal. So small m is equals to Vm by Vc or Em by Ec. So in this expression, Em expression, we are replacing this term Em by Ec with a small m, because we know m is equals to Em by Ec. So this ratio is replaced by small m, rest all the things are same. While opening this bracket we are opening, so EC multiplied by 1 EC, this sin omega CT multiplied by 1 sin omega CT. So the first term of the of the AM expression will become EC sin omega CT. In the second term, M sin omega T and M sin omega MT, we are multiplying this EC and multiplying this sin omega CT. So we will get the expression MEC sin omega MT into sin omega CT. Just we have opened this bracket by multiplying this term EC sin omega CT with the both the terms of this bracket. So we will get this expression. One thing we are having in trigonometry formula, sine of A into sine B. Actually 2 sine A into sine B, the formula is cos of A minus B minus cos of A plus B. So these two multiplication we will shift in the right side, it will become divisible, divide form. So sine A into sine B, the formula will become cos of A minus B divided by 2 minus cos of A plus B divided by 2. So in this expression, sin omega MT sin omega CT, this omega M or omega C will become A and omega M will become B. Omega C will become A, omega M will become T. So we are expanding using this formula. So the expression of AM signal will become EAM is equals to, the first term will remain as it is EC sin omega CT, not change in this term, it will remain as it is, nothing change in this term, EC sin omega CT. And in the second term, MEC sin omega MT sin omega CT, MEC will become constant. Just the formula of trigonometry, sin omega MT sin omega CT is expanded in this formula, in this form, where A term is omega C and B term is omega M. So expanding this formula, sine of A into sine of B, so cos of omega C minus omega M bracket close, T is common, so T is taken common, divide by 2 is come in this front side, MEC upon 2. Similarly, minus sign will remain as it is, minus sign MEC will also come in this third term, MEC upon 2, and the formula cos of A plus B, the cos of omega C, in terms of A it is omega C and in place of B it is omega M. So omega C plus omega M bracket close into T. So this is the EAM expression. In this expression we are getting three terms. The first term clearly indicates EC sin omega CT is nothing but the carrier signal. The carrier signal expression is this only, EC sin omega CT. The second term, which denote MEC by 2 cos of omega C minus omega M into T, this term is related with lower sideband of AM signal. The lower side amplitude change is denoted by, represented by this expression, MEC by 2 cos of omega C minus omega MT. This is the lower sideband of AM signal, expression of lower sideband of AM signal, where amplitude of lower sideband is MEC by 2, and frequency, if you expand this omega C, you will get formula 2 pi FC. Similarly, omega M, if you expand omega M, you will get 2 pi FM. So by taking 2 pi also common, you will get frequency FC minus FM. So lower sideband frequency is FC minus FM. And similarly, the third term is representing upper sideband. Here the amplitude is also same. The amplitude expression is MEC by 2. And the frequency of upper sideband will become, if you take 2 pi common from both the terms, so you will get the upper sideband frequency as FC plus FM. So lower sideband frequency is FC minus FM and upper sideband frequency is FC plus FM. The amplitude of both the sideband, upper sideband and lower sideband is same, MEC by 2. So this is very important expression of AM signal. What is the expression of AM signal? So here the meaning is given. If you see properly what is the expression of AM signal is representing. So in the expression, the first term is sine term called unmodulated carrier signal. So this first term, EC sin omega CT,
This EC sin omega ct is nothing but the term is denoting the carrier signal expression, because the carrier signal expression is this only. EC stand for amplitude of carrier, sin omega ct, sin stand for sinusoidal type signal, and omega c means carrier frequency. So this first term is representing the carrier signal only, unmodulated carrier signal only. Further, the second term is cos term at frequency fc minus fm. So as I told you, the frequency of lower sideband is fc minus fm, called lower sideband, with amplitude, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है एम ई सी बाई टू. तो जो सेकेंड टर्म है ए एम एक्सप्रेशन में, ये जो सेकेंड टर्म है ए एम एक्सप्रेशन में, ये सेकेंड टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एम का लोअर साइडबैंड रिप्रेजेंट कर रहा है. लोअर साइडबैंड जो नेगेटिव पोर्शन में जो एम्पलीट्यूड चेंज होता है वो टर्म का एक्सप्रेशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एफ सी माइनस एफ एम, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या है एम ई सी बाई टू. और इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है ये पर्टिकुलर फॉर्मूले में, ये जो थर्ड टर्म है, द थर्ड टर्म in this expression, the third term in this expression is cos term at frequency. कौन सी frequency है? fc plus fm, which is called as upper sideband. तो ये upper sideband का expression है, जिसकी frequency upper sideband की क्या है fc plus fm, और amplitude क्या है mec by 2. तो ध्यान से आप लोग को ये चीज एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए. एएम सिग्नल के एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है. पहला टर्म जो है वो कैरियर सिग्नल का डिनोट कर रहा है, दूसरा टर्म जो है वो लोअर साइडबैंड को डिनोट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम है, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या है एम ई सी बाई टू. और जो थर्ड टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अपर साइडबैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अपर साइडबैंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी प्लस एफ एम, और जिसका एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम है, एम ई सी बाई टू. तो एएम के एक्सप्रेशन में 3 टर्म आती है. 3 टर्म में कौन कौन सा आता है? कैरियर सिग्नल अनमॉड्यूलेटेड, जो विदाउट मॉड्यूलेट किया हुआ कैरियर सिग्नल है, एक लोअर साइडबैंड है और एक अपर साइडबैंड है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन एएम सिग्नल का हम लोग ने डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में किए थे. आज हम लोग उसके आगे बढ़ गए. ये एक्सप्रेशन का मीनिंग को अंडरस्टैंड करिए. और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को यह अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन. यानी एएम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डोमेन? यानी वो ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड में प्लॉट किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन. जैसे कि अभी तक ये जो तुम लोग डायग्राम देख रहे थे, अगर ये डायग्राम पे ध्यान से देख रहे होगे आप लोग, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? वो क्या चीज डिनोट कर रहा है? इट इज डिनोटिंग टाइम. तो ये जो ग्राफ जो बना हुआ है, ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? इट इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड. तो ये टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड वाले ग्राफ को बोलते हैं टाइम डोमेन. टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड वाले ग्राफ को बोलते हैं टाइम डोमेन. तो इसी का अपोजिट, इसी का रिवर्स, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम के बदले में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख दे, तो जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड के बीच में बनाया जाता है, प्लॉट किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पे वही चीज दी हुई है. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव. तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझाया है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या. तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब ये कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव का रिप्रेजेंटेशन किसमें? इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव. ठीक है, तो एएम वेव का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव. अब यहाँ पे नीचे देखो समझाया है. क्या समझाया है? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी. तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या या फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये होता है वो ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड के बीच में प्लॉट किया जाए, बनाया जाए, उस ग्राफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब क्या बताता है? द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ साइडबैंड प्रेजेंट इन एएम वेव विद करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड. अच्छा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव क्या बताता है हमको? हमको ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ साइडबैंड्स एएम में है और उन साइडबैंड्स का एम्पलीट्यूड भी कितना है. ये सब मालूम किस में पड़ता है हम लोग को?
फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव में मालूम पड़ता है। जब हम लोग एएम वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसको देख के हम लोग को ये मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ साइड बैंड्स है एएम वेव में और उन साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड कितना है, वो सब मालूम पड़ेगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव को देख के। तो ये जो ग्राफ अब आपके सामने आएगा, जो नीचे का जो ग्राफ है, ये ग्राफ वही जो एक्सप्रेशन हम लोग ने जो देखे ना, जो एक्सप्रेशन एएम वेव का देखे, उसी एक्सप्रेशन को देखते हुए ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव बनाया गया। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मतलब क्या, वो ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड के बीच में बनाया जाए। तो आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये कौन सा डोमेन वाला ग्राफ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है कौन से डोमेन वाला है, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला है, जिसको और क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन भी बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ में हम लोग को जो एएम का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या बनाना है। अब जैसा कि हमको मालूम है एएम में कौन कौन सी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। पहला क्या है, कैरियर। तो पहला कैरियर है, तो पहले आपने एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाए, ये क्या डिनोट कर रहा है, कैरियर को डिनोट कर रहा है। अच्छा, कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड हम लोग को यहाँ एक्सप्रेशन में भी देख के मालूम पड़ रहा है, ये कैरियर है, कैरियर को डिनोट कर रहा है। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, ईसी। कैरियर के एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, ईसी से डिनोट कर लो या वीसी से डिनोट कर लो, आपके ऊपर है। आप ई की जगह पे कैपिटल वी भी यूज कर सकते हो। तो ईसी से डिनोट करो या वीसी से डिनोट करो, बात एक ही है। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या है, ईसी। अच्छा, कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर ये ओमेगा सी को एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 पाई एफ सी। मतलब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, एफ सी से। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, ये एक्सप्रेशन में, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, ये स्ट्रेट लाइन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरियर को। कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, ईसी, इसलिए ऊपर यहाँ पे एम्पलीट्यूड बता रहा है ईसी। और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये नीचे वाला जो लाइन है वो किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी किसते पे, एफसी पे, इसलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एफसी। ओके, अब अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग ने अभी एक्सप्रेशन में देखे, ये अपर साइड बैंड, थर्ड वाला टर्म। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी प्लस एफ एम, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ना, कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, कितने के अमाउंट से ज्यादा है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के अमाउंट से ज्यादा है। तो हम लोग को आगे बनाना पड़ेगा, अपर साइड बैंड कहां पे बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आगे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे है ना, एफ सी प्लस एफ एम। मतलब एफ सी में और क्या ज्यादा है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का ज्यादा है। तो एफ सी प्लस एफ एम यानी आगे आएगा। तो आगे हम लोग ने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम क्या है, अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात हो रही, तो एम्पलीट्यूड कितना बताया अपर साइड बैंड में, एम्पलीट्यूड बताया एम ई सी बाई टू। तो यानी एम ई सी बाई टू मतलब ऑलरेडी कैरियर के एम्पलीट्यूड से छोटा ही रहेगा एम्पलीट्यूड। क्यों, क्योंकि अपॉन में 2 भी आ रहा है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। और आपको पता है एएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो जाहिर सी बात है जितना कैरियर का एम्पलीट्यूड हम लोग शो कर रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड से छोटा ही होगा। तो इसके लिए हम लोग ने इसकी लाइन को स्मॉलर रिप्रेजेंट किए। तो अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या है, एम ई सी बाई टू, तो जो कि छोटा है तो इसके लिए इधर पे स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट किए। एम्पलीट्यूड उसका लेस है, कैरियर से एम्पलीट्यूड छोटा है, लेस है, तो इसके लिए यहाँ पे स्मॉलर एम्पलीट्यूड में रिप्रेजेंट किए। और उसका एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन में हम लोग ने क्या यूज किए, एम ई सी बाई टू। लास्ट अपना लोअर साइड बैंड बाकी है। लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या है, एफ सी माइनस एफ एम, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी से कम है, कितने के अमाउंट से कम है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के अमाउंट से कम है, तो वो पीछे आएगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी से कम है तो मतलब पीछे आएगा, फ्रीक्वेंसी में पीछे आएगा। तो ये जो लाइन बनाए वो किसका बनाया हम लोग ने, लोअर साइड बैंड का। अब लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी माइनस एफ एम, तो यहाँ पे हम लोग ने लिखे उसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम। अच्छा, एम्पलीट्यूड, तो जितना अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड है उतना ही लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड है। तो दोनों का लाइन देखो सेम ही लेवल पे, जो एम्पलीट्यूड हम लोग ने अपर साइड बैंड का बनाया वही सेम एम्पलीट्यूड लेवल हम लोग ने किसका बनाया, लोअर साइड बैंड का भी। और उसका भी एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या लिखे हम लोग ने, एम ई सी बाई टू ही लिखे हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अब आपके सामने
एएम के दो डायग्राम क्लियर हो चुके हैं। एएम वेव इन टाइम डोमेन भी हो चुका है, एएम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन भी हो चुका है। ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये किसका देख रहे हैं हम लोग? एएम वेव का डायग्राम किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसको और क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या क्या बनाना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जितने भी एएम के एक्सप्रेशन में टर्म्स थे, वो टर्म के हिसाब से हम लोग ने बनाए, प्लॉट किए। तो हम लोग ने क्या क्या पाया? एएम में क्या क्या होता है? एएम में हम लोग ने देखे कैरियर होता है, अपर साइड बैंड होता है, लोअर साइड बैंड होता है। कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या होता है? ईसी। कैरियर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एफसी। फिर दूसरा क्या देखे हम लोग ने? अपर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या है? कैरियर से छोटा है, तो इसके एक्सप्रेशन को हम लोग ने किससे डिनोट किए? एम ई सी बाई टू, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी प्लस एफ एम। फिर पीछे आ गए, हम लोग ने और क्या देखे? हम लोग ने एम में क्या होता है? लोअर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी माइनस एफ एम, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? एम ई सी बाई टू। तो ये डायग्राम जो बना है वो किसका डायग्राम बना है? ये हम लोग ने बनाया है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव। कैरियर है, अपर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड है। तो एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो दिस इज द ग्राफ फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ एएम वेव। इससे पहले वाला जो डायग्राम आप लोग देखे थे, ये एएम वेव का जो डायग्राम है वो कौन से डोमेन में है? टाइम डोमेन में। तो टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड के ग्राफ को बोलते हैं टाइम डोमेन, और फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड के ग्राफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो आपको क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, रिप्रेजेंट एएम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा सिर्फ डायग्राम बनाने का कि एएम वेव को रिप्रेजेंट करो टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको टाइम डोमेन के लिए जो डायग्राम बनाना है, टाइम डोमेन वाला डायग्राम आपको ये बनाना है, एएम वेव इन टाइम डोमेन। तो एएम वेव इन टाइम डोमेन के लिए ये डायग्राम बनाएंगे, जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? टाइम, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? एम्पलीट्यूड। तो ये अंडर मॉड्यूलेशन टाइप वाला एएम वेव आपको बनाना है। किसमें? एएम वेव इन टाइम डोमेन में। अंदर कैरियर है, ये अपवर्ड साइड में जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? अपर साइड बैंड। और जो लोअर साइड बैंड में जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो ये एएम वेव का डायग्राम किसमें हो गया? टाइम डोमेन में हो गया। उसी तरीके से दूसरा डायग्राम एएम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बोला अभी है, तो एएम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए डायग्राम कौन सा रहेगा? ये वाला डायग्राम रहेगा, जहां पे हॉरिजॉन्टल पे क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल एक्सिस पे क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड, और अंदर आपको क्या क्या बनाना है? ये कैरियर, ये अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड। कैरियर का एम्पलीट्यूड ईसी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी एफसी, अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड एफसी, अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड एम ई सी बाई टू, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम। लोअर साइड बैंड का भी एम्पलीट्यूड सेम जितना अपर साइड बैंड का है, एम ई सी बाई टू, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है? कम होती है, एफ सी माइनस एफ एम। तो आई होप आप लोगों को ये चीज फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ एएम वेव भी समझ में आया सर अच्छे से। हाँ आया? समझ में आया सर, समझ में आया। हाँ समझ में आ गया। ओके ओके। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या होती है पता है आपको? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी सर। सर हाँ, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी रेंज सर, फ्रीक्वेंसी रेंज। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी रेंज। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक का वो आपको पता होना चाहिए। तो बैंडविड्थ जो है वो नॉर्मली क्या होता है? साइड बैंड। अपर साइड बैंड टू लोअर साइड बैंड। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे एएम वेव का लिखा हुआ है तो आप उसका देख के बता रहे हो, मैं नॉर्मल बैंडविड्थ की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला है, इट इज द डिफरेंस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल जो डेफिनेशन है ना बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इट इज द डिफरेंस ऑफ अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी हम लोग को अगर एएम का बैंडविड्थ पता करना है, ये एएम वेव है ना, एएम का स्पेक्ट्रम बना है हम लोग ने, तो एएम का जब बैंडविड्थ पता करना है, तो एएम का बैंडविड्थ यानी कितना फ्रीक्वेंसी रेंज ले रहा है एएम वेव, तो हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा? एएम का हायर फ्रीक्वेंसी कौन सा है? अपर साइड बैंड। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है? अपर साइड बैंड। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला एएम का कौन सा है? लोअर साइड बैंड। तो एएम का बैंडविड्थ पता करने के लिए आपको किसका किसका डिफरेंस लेने का है? अपर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी। सो द डिफरेंस ऑफ अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड इज द बैंडविड्थ ऑफ एएम। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दो
अपर साइड बैंड और फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड के बीच में एरो मार्क करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है, BW। BW स्टैंड फॉर बैंडविथ। तो ये बैंडविथ का मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो AM में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी चीज है, अपर साइड बैंड, जिसका एक्सप्रेशन क्या है, FC प्लस FM। और सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी AM में कौन सी है, लोअर साइड बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, FC माइनस FM। तो अगर हम लोग को AM की बैंडविड्थ पता करना है, तो AM की बैंडविड्थ पता करने के लिए हम लोग ने किसका डिफरेंस लिए, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या है, FC प्लस FM, बीच में माइनस साइन। लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या है, FC माइनस FM। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस साइन एज इट इज ऐसी रहेगा, ये अंदर का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस FC, ये माइनस FC क्या हो जाएगा, कैंसल। बचा क्या, FM प्लस FM। कितना FM हो गया, कितना FM हो गया, FM प्लस FM कितना हो गया, क्या दिख रहा है आपको इधर पे, 2 FM। 2 FM। तो बैंडविड्थ ऑफ AM इज ट्वाइस, दुगनी, किसकी दुगनी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की दुगनी। तो हमेशा AM की जो बैंडविड्थ है, उस बैंडविड्थ हमेशा क्या रहेगी, हमेशा ट्वाइस रहेगी, डबल रहेगी। किसकी डबल रहेगी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की डबल। ये जो FM है, ये FM काय का है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला। ये FC किसका है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये FM किसका है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी जो अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वाली सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा बैंडविड्थ ऑफ AM क्या होगी, डबल होगी, किसकी, जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी की डबल। सो बैंडविड्थ of AM, final expression, bandwidth of AM is twice of modulating signal frequency. BW is 2 FM. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैंडविड्थ ऑफ AM। हाँ सर। तो बैंडविड्थ ऑफ AM हम लोग ने यहाँ से देखे, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी करके, तो कितना मिला हम लोग को, एक्सप्रेशन 2 FM मिला। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ ऑफ AM, एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ ऑफ AM इज 2 FM। तो आई होप मैंने आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आज मैंने जो मेन जो चीज आपको एक्सप्लेन किया हूँ, वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ AM एक्सप्लेन किया हूँ, और बैंडविड्थ ऑफ AM एक्सप्लेन किया हूँ। सो ये चीज को मैं रिकॉर्डिंग को आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग फिर से उसको एक बार देख लेना, सुन लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्टे एट होम, स्टडी वेल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह